Hello everyone. So today we are going to start with elementary mathematics. Now what is exactly elementary mathematics? क्या होगा? ठीक है. So 8, 9, 10 में आपने कुछ मैथ्स का पार्ट पढ़ा होगा. उसी पार्ट का एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन. ठीक है. To be precise, I would be covering 5 topics in elementary mathematics, which are algebraic identities, indices, interval, logarithm, trigonometric ratios, and identities. Basically, these 5 parts cover all the basic of mathematics, irrespective of whether you want to go for JEE preparation or NEET preparation or NDA or for any other competitive examination. ये 5 चीजें आपको आना ही चाहिए to solve any of the part related to mathematics. Okay. So these 5 parts, इनमें से कुछ पार्ट आपने ऑलरेडी 8, 9, 10 पर देखा, जैसे लाइक ट्रिग्नोमेट्री, कुछ पार्ट आपने देख रखा होगा, रेशियोज देखा होगा, आइडेंटिटी देखा होगा, algebraic identities definitely for sure ये तो आप 3 साल से पढ़ते आ ही रहे हो, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है. So we'll be starting with first part which is algebraic identities. Now कुछ नहीं, कुछ basic formulas हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, बट एक बार रिकॉल कर रहे हैं हम लोग बस खाली, which are like स्क्वायर का फॉर्मूला, क्यूब का फॉर्मूला एंड सो ऑन. सो a plus b square nothing but a square plus b square plus 2ab. इसी को रीअरेंज करके आप इसके फॉर्म में भी लिखते थे, which is nothing but a minus b the whole square plus 4ab. Similarly प्लस की जगह माइनस चेंज किया, दैट इज a minus b whole square. अगेन सिमिलर फॉर्मूला, सिर्फ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, which is a square plus b square minus 2ab. इसी को रीअरेंज करके मैंने इस फॉर्म में लिखा, दैट इज a plus b the whole square में से जब 4ab सब्ट्रैक्ट कर दोगे, अगर इस टर्म में से माइनस 4ab करेंगे तो प्लस 2ab minus 4ab becomes minus 2ab, which gives us this formula. Okay. Similarly, a square minus b square nothing but a minus b into a plus b. a plus b the whole cube, which is a cube plus b cube plus 3ab the whole multiplied by a plus b. कुछ लोगों ने इसको आई थिंक a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square के फॉर्म में भी देखा होगा, which is the same thing, सिर्फ टर्म्स को मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं. नाउ प्लस की जगह अगेन माइनस, तो जहां जहां पे b का ऑड पावर है वो सब नेगेटिव हो जाएंगे, लाइक a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. How did it become minus 3ab into a minus b? अगर मैं फर्स्ट टर्म को ऑब्जर्व करूं, सो माय फर्स्ट टर्म विल बी minus 3a square b. Again b का पावर 1 which is odd, तो इसलिए नेगेटिव हुआ. Now my second term becomes plus 3ab square. इस केस में b का पावर क्या था? इवन था. That is why this becomes a positive term. Similarly a cube plus b cube, कुछ भी नहीं, यहाँ से ऑब्जर्व कर लो, a cube plus b cube equals to a plus b the whole cube minus 3ab into a plus b. Now if we take this a plus b common from these two terms, तो यहाँ पे क्या बचेगा? a plus b आ जाएगा. अब यहाँ जो पार्ट बचा है a plus b कॉमन लेने के बाद वो क्या लिखेगा? a plus b the whole square minus ab. Now a plus b the whole square is nothing but a square plus b square plus 2ab minus of, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास? 3ab, which becomes a square plus b square minus ab. plus 2ab और minus 3ab मिलके बन जाएगा आपके पास minus ab. Similarly a cube minus b cube, अगेन ये फॉर्मूला कहाँ से बनाएंगे? थ्रू आइडेंटिटी 5, a cube minus b cube क्या हो जाएगा? a minus b the whole cube, और ये माइनस का पार्ट प्लस बन के यहाँ पे आ जाएगा, plus 3ab into a minus b. This was one formula. इसी को हम लिख सकते हैं a minus b कॉमन लेने के बाद यहाँ हो जाएगा a minus b the whole square plus 3ab. अगेन a minus b the whole square will be a square minus 2ab plus b square minus 2ab plus 3ab will become plus ab. तो ये इसी का सेकंड फॉर्मूला. आई थिंक स्टार्टिंग के 7 पार्ट्स तो आपको ऑलरेडी पता थे. दिस 8th इज समवॉट न्यू टू यू. ठीक है, तो समझ गए कहां से आया? कुछ नहीं, a plus b का होल स्क्वायर देखा था हम लोगों ने, अभी जस्ट देखा a square plus b square plus 2ab. वैसे ही a plus b plus c का होल स्क्वायर. ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको एक टेक्निक देता हूं, उस टेक्निक से नॉट ओनली a plus b plus c, किसी भी टर्म्स का सम का स्क्वायर चलेगा, उसको आप सॉल्व कर सकते हो. द टेक्निक इज, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके पास? 3. फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों को इंडिविजुअली स्क्वायर करो, लाइक फर्स्ट टर्म शुड बी a स्क्वायर, second term b square, third term c square. Now take combination of 2 terms at a time. You have 3 terms a b and c. जब 2 की कॉम्बिनेशन करूंगा तो क्या क्या बनेगा? फर्स्ट कॉम्बिनेशन शुड बी a b, सेकंड इज b c, थर्ड इज a c. 3 कॉम्बिनेशन बनना चाहिए थे, तो वही मैंने किया, twice of a b, twice of b c, twice of a c. एग्जैक्टली ये चीज आपने यहाँ भी की थी. ठीक है, जब आपने a plus b का स्क्वायर लिखा तो पहले इंडिविजुअल टर्म का स्क्वायर which is a square plus b square. नाउ क्योंकि 2 टर्म थे तो एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल था which is a into b, तो आपने लिख दिया plus 2ab. बट बिकॉज यहाँ पे 3 टर्म है a b and c, तो देयर आर 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस which are ab
BC एंड AC, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे टोटल 6 टर्म्स मिलेंगे। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, सपोज करो इस ट्वाइस AB को मैं C से मल्टीप्लाई करूं और C से डिवाइड करूं, ठीक है। सपोज इफ आई मल्टीप्लाई दिस ट्वाइस AB बाय C एंड डिवाइड बाय C, तो ये देखिएगा 2ABC अपॉन C। सिमिलरली इसको A से मल्टीप्लाई और A से डिवाइड, तो ये बन जाएगा 2ABC अपॉन A, और इसको B से मल्टीप्लाई एंड B से डिवाइड, तो ये बनेगा ट्वाइस ABC अपॉन B। तीनों में से न्यूमरेटर में ट्वाइस ABC कॉमन आ जाएगा, तो दिस फॉर्मूला लुक्स लाइक दिस। चाहो तो क्रॉस चेक करो, स्टार्टिंग के 3 टर्म मैंने सेम लिखे हुए। नाउ अबाउट द नेक्स्ट टर्म, ट्वाइस ABC अपॉन A, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो इट वुड बी नथिंग बट ट्वाइस BC, ये हो गया आपका ट्वाइस BC। सिमिलरली ट्वाइस ABC बाय B, सो B से B कैंसिल, इट इज ट्वाइस AC, एंड ट्वाइस ABC अपॉन C, इट इज ट्वाइस AB। सो यहां से आपको बेसिक फॉर्मूला जो आपने देखे थे, हमने उन्हीं फॉर्मूलेस को सिर्फ एक बार रिकॉल किया है और कुछ नहीं। सो दिस वाज आवर फर्स्ट पार्ट व्हिच इज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टर्म व्हिच इज इंडाइसिस। नाउ इंडाइसिस क्या होता है, और अगर आपने सुना हो तो इंडेक्स का मतलब क्या होता है। सो मैथमेटिकली आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा होगा, आइदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। लेट अस से मैंने इन जनरल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है व्हिच इज ax² plus bx plus c equal to 0. Now, यहाँ पे we have 3 terms a, b and c which are constants, and we have a term x जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल, जिसका वैल्यू चेंज होता है और जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं जनरली। सो यहाँ पे आपको x के पावर्स दिख रहे होंगे। नाउ यहाँ पे x का पावर 2 है, इन दिस टर्म x का पावर इज 1, इस टर्म में x का पावर 0 है बेसिकली। सो इंडेक्स इज नथिंग बट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। और सिंपल, इट कुड बी अ पावर ऑफ कांस्टेंट आल्सो, बट इन जनरल जो हम अज्यूम करते हैं वो हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स इज नथिंग बट पावर, और इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। ओके, सो मैंने वो इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ n फैक्टर्स ईच इक्वल टू x इज रिप्रेजेंटेड बाय x रेज टू n। इसका मतलब क्या है समझना, अगर मैं लिखूं x into x into x n टाइम्स, आई एम राइटिंग दिस एज n टाइम्स, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा अपने पास x टू द पावर n, वो लिखा है प्रोडक्ट ऑफ n फैक्टर्स ईच इक्वल टू x इज रिप्रेजेंटेड बाय x रेज टू n, जहां पे x जो है इस नंबर, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं बेस, एंड जो ये n है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। टू बी प्रिसाइज इसी को हम बोलेंगे पावर या फिर एक्सपोनेंट। तो इंडेक्स मतलब बेसिकली आपका होता है पावर। इट कुड बी ऑफ अ वेरिएबल, इट कुड बी ऑफ अ कांस्टेंट आल्सो, ठीक है। नाउ देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसिस, एक बार उसको देख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ इंडाइसिस। लाइक फर्स्ट प्रॉपर्टी, सपोज a इज अ नंबर जिसका इंडेक्स इज m, अनदर नंबर या सेम नंबर a विद अनदर इंडेक्स n। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका नेट आउटपुट पे क्या इंपैक्ट होता है। सो a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज नथिंग बट a टू द पावर m प्लस n। ध्यान रखो इस चीज को, जब दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो विद सेम बेस एंड डिफरेंट पावर एंड डिफरेंट इंडेक्स, तो कंडीशन क्या आता है कि आपका बेस तो सेम रहता है बट आपकी दोनों पावर आपस में ऐड हो जाती है बेसिकली। जैसे मल्टीप्लीकेशन में ऐड हुआ, वैसे ही जब मैं सेम बेस वाले नंबर को डिवाइड करूंगा, दैट इज a रेज टू m बाय a रेज टू n, सो अब क्या होगा, नाउ माय टर्म बिकम्स a रेज टू m माइनस n। जब आपने दो सेम बेस वाले नंबर को डिवाइड किया, तो अब डिवाइड करने के बाद जो आपको नंबर मिलता है उसका बेस तो सेम रहेगा बट पावर m माइनस n हो जाएगा। सिमिलरली 1 अपॉन a रेज टू n, अब इसका मतलब क्या होगा, तो क्या इस 1 को आई कैन राइट a टू द पावर 0। अगर a टू द पावर 0 हो गया, सो a टू द पावर 0 अपॉन a टू द पावर n, सो इसी को आई वुड राइट a टू द पावर माइनस n। सो इस टर्म को भी ध्यान रखो, नेगेटिव पावर्स को डील करने के लिए हम लोग ये लॉजिक यूज करते हैं हमेशा। सिमिलरली सपोज कहीं आपसे बोला गया है a टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1। नाउ इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इसको ध्यान रखना, a to the power n is equal to 1। इससे what you will conclude, so there are two logics behind this। पहला आप ये बोल सकते हो कि either n is equal to 0, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि किसी भी नंबर की पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। सिमिलरली इसका एक आंसर और भी पॉसिबल है, पावर पे वी कांट कमेंट, आई एम कमेंटिंग कि a वैल्यू ही 1 हो जाए।
बिकॉज 1 रेज टू एनीथिंग इज ऑल्सो 1। तो यहां पे कंडीशन में लिख रहा हूं कि आइदर n इज इक्वल टू 0 और a कोई भी रियल नंबर बन जाए, एनी रियल नंबर, इट डजंट मैटर, एनी रियल नंबर टू द पावर आपके पास 0, वो क्या हो जाएगा अपने पास 1। इसमें सिर्फ एक कंडीशन को ध्यान रखना, वो रियल नंबर जो है वो 0 नहीं हो सकता, बिकॉज 0 टू द पावर 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, खाली उस पार्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट दैट पार्ट, बाकी सब पार्ट हम करेक्ट बोलेंगे। सिमिलरली a is equal to 1, 1 to the power anything is equal to 1, तो यहाँ पे I would say अगर a ही 1 हो गया तो n का वैल्यू आप कुछ भी रखो, इट डजंट मैटर, हमेशा उसका आंसर क्या आएगा अपने पास 1। सो दीज आर सम बेसिक लॉज ऑफ इंडाइसिस जो हम व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन यूज करने वाले हैं। सो दिस वाज आवर सेकंड पार्ट, इंडाइसिस। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट। ओके, सो अपना थर्ड पार्ट जो है दैट इज इंटरवल्स। मैं उसका यूज कैसे करते हैं, जब आपको किसी भी सेट ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हो, लाइक आपने नंबर लाइन देखा होगा, सपोज करो मैंने एक नंबर लाइन प्लॉट किया है, नंबर लाइन इज समथिंग लाइक दिस, लेफ्ट हैंड साइड का एंड होता है माइनस इंफिनिटी पे, राइट साइड इज इंफिनिटी। सपोज मुझे यहाँ पे 1 से लेके 5 तक के नंबर्स को प्लॉट करना है, विच इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब देयर आर सर्टेन बेसिक नोटेशन जिसको समझ लो, लाइक मैंने यहाँ पे इस टाइप से कुछ प्लॉट कर रखा है कि 1 से लेके 5 तक के नंबर्स, और 1 और 5 पे आपको ऐसा एक हॉलो सर्कल दिख रहा होगा, स्मॉल सिंबल। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से 5 के बीच के सारे नंबर्स, नॉट ओनली इंटीजर्स, ध्यान रखो, ऑल द रियल नंबर्स, इट कुड बी 1.1, 1.01, सब कुछ काउंट होगा, बट 1 से बड़ा एंड 5 से छोटा। और जब मैंने ये हॉलो मार्क से रिप्रेजेंट कर रखा है, दैट मीन्स 1 एंड 5 आर एक्सक्लूडेड, उनको मुझे काउंट नहीं करना है। सो ऐसे केस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओपन इंटरवल से। ठीक है, सपोज करो मैं इसके बीच के नंबर को x डिनोट करता हूं, तो इसको मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू, दिस सिंबल इज नोन एज बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू, मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं, नॉर्मल ब्रैकेट अपने पास 1 2 5, ये जो ब्रैकेट है कर्व ब्रैकेट, इन ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। इट मींस 1 से लेके 5 तक के सारे वैल्यूज काउंटेड है, बट 1 and 5 are not included, they are excluded। ध्यान रखना, हमेशा ब्रैकेट का लेफ्ट हैंड नंबर शुड बी लेसर देन राइट हैंड नंबर, बिकॉज हमेशा हम ब्रैकेट को लिखते हैं अलोंग द नंबर लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा तो आई स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड्स अप टू 5, तो 1 से लेके 5 तक के सारे नंबर्स, बट एक्सेप्ट 1 एज वेल एज 5। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म इज क्लोज इंटरवल। अब क्या डिफरेंस हुआ ये समझना, सपोज करो सेम नंबर लाइन पे अब मेरे पास क्या आ गया, अब मैंने नंबर को जैसे प्लॉट किए 1 से लेके 5, दोनों में डिफरेंस क्या है समझना। जो मैंने पॉइंट नंबर 1 लिखा है उसमें यू कैन सी हॉलो आपको सिंबल्स दिखेंगे, बट यहाँ पे वही सिंबल्स सॉलिड हो गए। ठीक है, सिंबल सॉलिड हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, नो डाउट बीच के सारे वैल्यूज काउंटेड थे ऑलरेडी, बट अब 1 और 5 भी काउंटेड है। सो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसको मैं लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट 1 to 5। अंडरस्टूड, इसका मीनिंग क्या होगा, लाइक जो कर्व ब्रैकेट था दैट रिप्रेजेंट्स कि 1 से लेके 5 तक के वैल्यूज एक्सक्लूडिंग 1 and 5, बट अब ये बोलेगा 1 से लेके 5 तक के वैल्यूज इंक्लूडिंग 1 एज वेल एज 5। तो ये ब्रैकेट जो है इट डिनोट्स कि आपके जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो भी काउंटेड हैं। ओके, सिमिलरली ओपन क्लोज, अब आपको आई थिंक नाम से समझ गया होगा कि पहले हमने ओपन देख लिया बाद में क्लोज, तो अब ओपन क्लोज का मतलब क्या हुआ। नाउ सपोज यहां पे मैंने 1 बना रखा है विद अ हॉलो, एंड इसी के आगे यहां मैंने 5 बना रखा है। नाउ इसका मतलब क्या हुआ, अभी अब ऑब्जर्व करोगे तो 1 पे हॉलो है एंड 5 पे सॉलिड है। इट मींस जो x का वैल्यू है उसमें 1 पे तो कर्व ब्रैकेट रहेगा बिकॉज 1 काउंटेड नहीं है, बट 5 पे क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट बिकॉज वो काउंटेड है। तो 1 से लेके 5 तक के नंबर्स एक्सक्लूडिंग 1 इंक्लूडिंग 5, इसलिए इसको हमने बोला ओपन क्लोज ब्रैकेट। अंडरस्टूड, अगर फोर्थ पार्ट समझा, थर्ड पार्ट समझा तो फोर्थ भी क्लियर है। फोर्थ में क्या हो जाएगा, क्लोज ओपन। नाउ द फर्स्ट वैल्यू शुड बी काउंटेड एंड सेकेंड वैल्यू काउंट नहीं करना है। सो अब फर्स्ट वैल्यू को मैं सपोज सॉलिड कर देता हूं, सेकेंड वैल्यू यहाँ पे इसको हॉलो कर देते हैं। सो सपोज लाइक दिस केस, ये हो गया 1, दिस इज 5, तो अब मैं यहां लिखूंगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 एंड 5 पे क्या आ जाएगा अपने पास ओपन इंटरवल। तो ये हो गया अपने पास क्लोज्ड ओपन इंटरवल। नाउ इसका यूज कहां पे आता है, कुछ क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए अपने को आंसर एक वैल्यू नहीं मिलता, एक सर्टेन रेंज मिलता है, लाइक 1 to 4, 2 to 3 एंड सो ऑन, जो भी कुछ होगा
तो वो रेंज को कमेंट करने के लिए, हमको उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड सच इंटरवल्स। नाउ इस पे आपसे एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। सपोज इन्हीं चारों पार्ट में मुझसे पूछा जा रहा है कमेंट ऑन द नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइन बिटवीन दिस रेंज। लाइक सपोज फर्स्ट पार्ट में जो भी आपने इंटरवल लिखा है उसके अंदर कितने इंटीजर आ रहे हैं। सो 1 2 3 4 5 टोटल 5 दिख रहे हैं, बट आउट ऑफ दीज 5 ये 1 और 5 तो काउंटेड नहीं थे, हमने खुद ही बोला कि दीज आर एक्सक्लूडेड। दैट मींस इसके अंदर नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने होंगे, तो इट शुड बी 2 3 एंड 4, ओनली 3 इंटीजर्स। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं। नाउ यहाँ पे दोनों ब्रैकेट क्लोज हो गए हैं, दोनों ब्रैकेट क्लोज या दोनों ब्रैकेट आपका स्क्वायर हो गए। दैट मींस क्या होगा, 1 एंड 5 बोथ आर काउंटेड। तो जब आप 1 से लेकर 5 तक के इंटीजर्स काउंट करोगे, ओनली इंटीजर्स, तो 1 2 3 4 5, इस केस में आपका आंसर क्या रहेगा, देयर आर 5 वैल्यूज बिकॉज 1 भी काउंट हुआ एंड 5 भी काउंट हुआ। मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या हुआ कि 1 काउंटेड नहीं था बट 5 काउंटेड है। सो 1 को मैं काउंट नहीं करूंगा बट आई स्टार्ट विद 2 2 3 4 एंड 5। नाउ अब कितने इंटीजर मिले मुझे यहाँ पे, तो ना आई गॉट 4 इंटीजर्स। तो इसमें आपके पास ओपन ब्रैकेट 1 टू क्लोज ब्रैकेट 5 में आई हैव 4 इंटीजर्स। सिमिलरली ये दोनों तकरीबन सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे 1 काउंटेड नहीं था 5 काउंटेड था, यहाँ पे रिवर्स हो गया, 1 काउंटेड है पर 5 काउंटेड नहीं है। तो इंटीजर्स में आपके पास 1 2 3 4, राइट नाउ आल्सो वी हैव कितने 4 इंटीजर्स। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं इंटरवल्स के इंटरवल्स क्या होते हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बेसिक यूज कहां पे आता है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका आंसर मल्टीपल वैल्यूज या रेंज की फॉर्म में आएगा तो हम उसको इस इंटरवल की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, लॉगरिथम। ओके, सो अब तक हम लोगों ने जो 3 पार्ट देखे, दैट इज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज या फिर इंडाइसिस या इंटरवल्स, ये 3 में आपने कुछ ना कुछ कभी पढ़ रखा होगा आपके पुराने स्टैंडर्ड्स में। बट अभी लॉग का पार्ट जो है वो आई डोंट थिंक इतना आपको आइडिया होगा। सो बेसिक से समझते हैं कि लॉग होता क्या है, कब एप्लीकेबल है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, सब देखना। सो लॉगरिथम बना क्यों, उसको क्यों यूज करते हैं वो समझोगे। सबसे पहले कोई भी नेचुरल नंबर, सिंपल सा नेचुरल नंबर बोलूं या फिर पॉजिटिव रियल नंबर, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर को हम हमेशा इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लाइक n एक पॉजिटिव रियल नंबर है जिसको मैं हमेशा a की पावर x इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। सिंपल सा एग्जांपल, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 81 इक्वल टू 9 स्क्वायर, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि इंटीजर ही हो, पॉइंट के नंबर भी हो सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं। सो मैंने खाली इतना बोला कि ये जो नंबर है लेफ्ट हैंड साइड पे, दिस शुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव नहीं। इंटीजर नहीं बोल रहा हूँ, इट कुड बी अ रैशनल, इट कुड बी फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है कहीं भी। राइट साइड पे जो आपका आंसर है दैट इज a रेज टू x, वो आपको दिखा रहा है कि आपने जो नंबर लिखा था वो किसी ना किसी a रेज टू x के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। नाउ लॉग का डेफिनेशन समझते हैं कि एग्जैक्टली लॉग का डेफिनेशन क्या होता है। एवरी पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो मैंने लिखा है n इज इक्वल टू a रेज टू x, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर उसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पे a जो है ये आपका क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर। ऑब्वियसली अंडरस्टूड है ना, अगर ये साइड पॉजिटिव है तो ये a भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। बिकॉज अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है और राइट साइड पे आपने एक नंबर की पावर x लिखी है तो वो नंबर भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी उसका आंसर इक्वल हो सकता है। वेयर a इज ऑल्सो अ पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन यूनिटी। व्हाई अदर देन यूनिटी? द रीजन इज अदर देन यूनिटी इसलिए बोला बिकॉज यूनिटी मतलब 1 की पावर कुछ भी दे दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो हमेशा मैच हो, इट्स नॉट नेसेसरी। इसलिए हम बोलते हैं कि a जो है वो 1 के अलावा कुछ नंबर हो सकता है। इसी a को हम बोलते हैं बेस, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया इंडाइसिस में, सेम चीज है। इस a को हम बोलते हैं बेस और ये जो x है इस x को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, और यू कैन से पावर। अब इसी एक्सप्रेशन को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये समझना। इसी एक्सप्रेशन को लॉगरिथमिक फॉर्म में हम लिखते हैं log n, जो आपका नंबर था उसका लॉग लेंगे और बेस जो था वो बेस सेम रहेगा, दैट इज इक्वल टू x। थोड़ा सा और समझते हैं कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। जो इन्होंने लिखा है 81 इक्वल टू 9 स्क्वायर, एक कंडीशन ये भी ट्रू है, इसी को क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 4। कुछ नहीं, अगर ऑब्जर्व करोगे तो मैंने नंबर n को चेंज नहीं किया बट मैंने बेस को चेंज किया। a की जगह पहले मैंने 9 लिया था और x की जगह 2, अब मैंने a की जगह क्या कर दिया 3 और x की जगह क्या कर दिया 4। कहने का मतलब क्या है ये समझोगे। ये लॉगरिथम क्या डिनोट करता है, लॉगरिथम ये डिनोट करता है कि n आपके पास वो वैल्यू है जिससे आप बेस को रेस करोगे x टाइम्स तो जो आंसर मिलेगा वो मैच करेगा। लाइक वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है n इज दैट नंबर जिससे आप बेस को रेस करोगे x टाइम्स तो आपको क्या मिल जाएगा n।
अब इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को समझते हैं कि ये कैसे ट्रू है। मैंने आपसे बोला कि n इज इक्वल टू a रेज टू x, और इससे हमको क्या आंसर मिला, कंडीशन मिला कि log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू क्या आना चाहिए, x। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हमने कुछ इक्वेशन, कुछ कंडीशन लिख रखी है, इनको समझते हैं। लाइक मैं पहला इक्वेशन ऑब्जर्व करूं तो 81 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं इसको लॉग में ऑब्जर्व करूं तो कैसा दिखेगा, समझना, log ऑफ n, n मतलब क्या हो गया 81, अब बेस क्या हो जाएगा, दिस नंबर विच इज 9, इट इज इक्वल टू 2। यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि log के अंदर जो n लिखा है इसका मतलब क्या होता है, तो कुछ नहीं, जो log का बेस है उसमें कितना पावर रेस करोगे कि ये नंबर बन जाए। ठीक है, तो 9 में कितना पावर रेस करना पड़ेगा आपको, 9 स्क्वायर दैट इज 81, तो 81 बन जाएगा, दैट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2। इसी एक्सप्रेशन को वापस से समझोगे, 81 इक्वल टू 3 रेज टू 4। अब मैं इसको लिखता हूं log ऑफ 81, अब मेरा बेस क्या होगा 3 इक्वल्स टू 4। वेरीफाई करते हैं, 3 का पावर हम कितना इंक्रीज करें कि 81 बनेगा, तो 3 रेज टू 1 इज 3, 3 रेज टू 2 इज 9, 3 रेज टू 3 इज 27, 3 रेज टू 4 ये बन जाएगा अपने पास 81। तो 3 की पावर 4 रेज किया तो अपने आंसर क्या मिला 81, दैट मींस इट इज इक्वल्स टू 4। तो इस लॉग का मतलब क्या हो रहा था अपने पास कि a का आप कितना पावर रेस करोगे कि वो क्या बने n, और उसी को हम बोलेंगे बेसिकली x का वैल्यू। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है इसको ध्यान रखो, हम लोग सिर्फ इस चीज को यूज करने वाले हैं टू स्टार्ट विथ लॉग, दैट इज कभी भी इक्वेशन अगर n इक्वल टू a रेज टू x के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसी इक्वेशन को हम लिखेंगे log ऑफ n विद बेस a इज इक्वल टू x। ठीक है, नाउ कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पे इसके समझना। प्रॉपर्टीज का मतलब ये हुआ कि ये कब कब डिफाइन होगा, कब चलेगा, सब अपने को पता होना चाहिए। सो पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन इज कि n जो है ये हमेशा अपने पास पॉजिटिव होना चाहिए। देखो फर्स्ट लाइन ही लिखा है हम लोगों ने, एवरी पॉजिटिव रियल नंबर n। ठीक है, n हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम लॉग को डिफाइन कर पाते हैं। ओके, सेकेंड कंडीशन पे आता हूं। सेकेंड इज अपने पास जो a लिखा हुआ है, ठीक है, हमने a पे कुछ कंडीशन लिखी थी, a इज ऑल्सो पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन यूनिटी। तो a भी क्या होना चाहिए अपने पास पॉजिटिव, एज वेल एज a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। तो जब भी लॉग को सॉल्व करोगे तो इस कंडीशन को ध्यान रखना कि लॉग सिर्फ किसका डिफाइन होता है, पॉजिटिव नंबर्स का, और एट द सेम टाइम लॉग का जो बेस है वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव एंड साथ में नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये कंडीशंस को हमको ध्यान रखना है लॉग को समझते हुए। ठीक है, नाउ ये हमने सिर्फ देखा कि लॉग होता क्या है या फिर उसका एक टेक्निकल मीनिंग क्या है। अब देखते हैं कि लॉग की बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, बेसिक लॉग का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग दिस सेम प्रॉपर्टी। ओके, सो अब कुछ बेसिक से क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड अपॉन लॉग। हमको इन सब लॉग की वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है जितना पॉसिबल है। अब देखो देयर आर टू अप्रोचेस, डायरेक्टली कमेंट कर पाओगे वेल एंड गुड, नहीं कर पाए तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लाइक दिस क्वेश्चन, log ऑफ 27 टू द बेस 81, या तो आप डायरेक्टली सोच के बताओ कि 81 की क्या पावर दें कि आंसर क्या मिल जाए 27, वो भी लॉग का डेफिनेशन दिया था। या फिर अगर आपको डायरेक्टली प्रॉब्लम आता है तो इसको हम टेक्निकली मेथड से सॉल्व करेंगे। लेट अस से इसको मैंने इक्वल टू बोल दिया x। नाउ हमने अभी जस्ट एक चीज पढ़ा था कि अगर n इज इक्वल टू a रेज टू x है तो log n टू द बेस a इक्वल टू क्या होता है x। अब मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करूंगा कि अगर log n टू द बेस a इक्वल टू x है, इसका मतलब n इक्वल टू क्या होना चाहिए a रेज टू x। तो यहां पे क्या बनेगा, ये अपना n था, दैट मींस 27 इक्वल टू a, बेस कितना था 81, सो 81 रेज टू x। ये बनेगी अपनी इक्वेशन। इस स्टेप को ध्यान रखो या इस कंडीशन को ध्यान रखो, मैक्सिमम लॉग की क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए आपको इसी कंडीशन को यूज करना पड़ेगा। सो 27 इक्वल टू 81 रेज टू x। नाउ अभी भी प्रॉब्लम है कि डायरेक्टली तो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा, बट मुझे एक चीज दिख रही है कि ये दोनों कहीं ना कहीं 3 के मल्टीपल्स हैं, तो हम उसी लॉजिक को लेके स्टार्ट करेंगे। 27 को आई कैन राइट 3 क्यूब और 81 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 4। नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसेस, पावर की प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा पावर की पावर, इसको हम कैसे लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो ये दिखेगा 3 क्यूब इक्वल टू 3 टू द पावर 4x। मतलब कंडीशन मिला दोनों का बेस सेम तो पावर भी क्या होना चाहिए सेम, दैट मीन्स 4x इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/4। ये होगा अपना आंसर। सो दिस इज द वैल्यू
दैट मीन्स जब 81 की पावर 3/4 दोगे तब आपको आंसर मिल जाएगा 27, इसलिए x इक्वल टू आया अपने पास 27। नाउ अब जो सेकंड क्वेश्चन हुआ, इसको आप चाहें तो राइटली इससे सॉल्व नहीं करना, ओरली भी कर सकते हैं। 10 का क्या पावर बेस करेंगे कि 100 बनेगा, तो हमको पता है पावर 2, तो इसका आंसर 2 आना चाहिए डायरेक्टली। बट एक बार फिर भी इसी मेथड से क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। इसी को मैं लिखूंगा log ऑफ 100 टू द बेस 10 इक्वल टू कितना x। नाउ अब इक्वेशन कैसे बनता था, 100 इक्वल्स टू बेस जाएगा यहाँ पे तो बेस टू द पावर x। नाउ इस 100 को क्या लिखोगे 10 स्क्वायर, तो इट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर x, मतलब ये क्या हो गया x इज इक्वल टू 2। वही जो हमने ओरली कमेंट किया सेम आंसर यहाँ भी मिलेगा आपको, x इज इक्वल्स टू 2। सिमिलरली थर्ड पार्ट पे आते हैं। अगेन क्या डायरेक्टली कमेंट कर पाएंगे हम लोग कि 1/3 की पावर कितना रेज करने पे 9√3 बनेगा, तो थोड़ा टिपिकल लग रहा है। अगेन सेम अप्रोच यूज कर लेते हैं। log ऑफ 9√3 टू द बेस 1/3 इज इक्वल टू x। यहां कंडीशन लिखेंगे 9√3 इज इक्वल टू 1/3 होल टू द पावर x। अब थोड़ा सा केयरफुल रहो, ठीक है। 9√3 इसको मैं ऐसा लिखता हूं 3 स्क्वायर इंटू √3, और इसको मैं लिखता हूं 3 टू द पावर -x। अभी हमने इंडाइसिस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी 1/3 रेज़ टू x, मतलब बेसिकली 3 की पावर -x। नाउ ये जो 3 रूट या 3 का स्क्वायर है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं √3 की पावर 4, बिकॉज एक 3 को हम लिखते हैं √3 स्क्वायर, तो यहाँ पे तो 2 3 था, दैट मीन्स 3 स्क्वायर था, तो इसको मैंने लिखा √3 की पावर 4 टाइम्स √3 इक्वल टू 3 टू द पावर -x। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, √3 रेज़ टू 4 इंटू √3, तो कितना हो जाएगा √3 रेज़ टू 5 इक्वल टू, अब इस साइड √3 है तो यहां भी √3 आना चाहिए, दैट मीन्स इस 3 को मैं लिखूंगा √3 का स्क्वायर और स्क्वायर विद पावर -x, मतलब नेट पावर कितना हो जाएगा -2x। नाउ वी कैन कंपेयर, यहां भी √3 यहां भी √3, दोनों का बेस सेम है, तो दोनों की पावर भी एग्जैक्टली क्या होना चाहिए अपने पास, सेम। दैट मीन्स 5 इज इक्वल टू -2x और x इक्वल टू -5/2, ये होना चाहिए अपना आंसर। सो बेसिकली हमने क्या किया, लॉग का जो अपना फर्स्ट डेफिनेशन से कंक्लूजन मिला था, सिर्फ मैंने उतना ही प्रॉपर्टी यूज किया टू गेट ऑल दीज वैल्यूज, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक एग्जांपल। नाउ लॉग का आगे प्रॉपर्टी समझते हैं कि और क्या क्या होना पढ़ना है हमको लॉग में बेसिकली। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। थोड़ा समझना, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली प्रॉपर्टी, बिकॉज बहुत बार स्टूडेंट्स को मिस कर देते हैं। द प्रॉपर्टी इज समथिंग लाइक दिस, a to the power log n to the base a is equal to n। मतलब क्या हुआ, ये जो बेस में नंबर था और लॉग का बेस अगर दोनों सेम हो गए, दैट मींस दोनों बेस अगर सेम हो तो आंसर आपको सीधे n मिलता है। नाउ ये प्रॉपर्टी कैसे आया, कहां इसका प्रूफ है समझना, बिकॉज अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू है तो इस हमारे बहुत सारे टेक्निकल या फिर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सो ये प्रॉपर्टी कैसे प्रूव हुआ इसको समझना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो a log टू द बेस an, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को मैं अज्यूम करता हूं y, ठीक है। मुझे नहीं पता था इक्वल टू n, तो मुझे प्रूफ करना है, बट आई विल अज्यूम दिस पार्ट टू बी y। नाउ अब जो ये सिर्फ पावर है, दैट इज log n टू द बेस a, इस पावर को मैं x बोलता हूं, ठीक है। इस पावर को अगर x बोला तो इसी इक्वेशन को हमने भी पढ़ रखा है कि इट इज नथिंग बट n इज इक्वल टू a टू द पावर x, ये हो गया अपने पास। नाउ अब जब मैं log n टू द बेस a इक्वल टू x पुट कर रहा हूं तो इसी का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो ये इक्वेशन क्या दिखेगा, देखो a टू द पावर x इज इक्वल टू y। अब लेट दिस बी इक्वेशन 1 एंड लेट दिस बी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 जो था वो इस कंडीशन से आई, तो हमको पता है लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी है, और जब मैंने इस पार्ट को यहां पुट किया तो मुझे क्या मिला, इक्वेशन 2। दोनों से ही मुझे किसकी वैल्यू मिल रही है, a रेज़ टू x। अगर दोनों से a रेज़ टू x का वैल्यू मिला, दैट कंक्लूड्स टू n इज इक्वल टू y। वही हमको प्रूफ करना था कि a टू द पावर log n टू द बेस a इक्वल्स टू क्या होना था, n। मैंने y अज्यूम किया, बाद में इक्वल टू क्या प्रूफ कर दिया, y इज इक्वल टू n। एग्जांपल क्या रहेंगे इसके बेसिक से, लाइक डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछते हैं इसमें कि सपोज 2 टू द पावर log 5 टू द बेस 2, इसका वैल्यू, तो अब आप डायरेक्टली बोल सकते हो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। क्यों, क्योंकि जब बेस और लॉग का बेस दोनों इक्वल हो गया तो आपको आंसर डायरेक्टली क्या मिल जाएगा 5।
तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। ओके, सो जो पार्ट हमने आज देखा उस पार्ट पे बेस्ड में आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं। नाउ दीज आर योर प्रैक्टिस क्वेश्चन दैट यू हैव टू ट्राई। सो कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। एक क्वेश्चन विद बेस 2 के साथ आपको इन सबका वैल्यू सॉल्व करना है, सेकेंडली विद बेस 1/3 के साथ। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हमने स्टार्टिंग के 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए, बट लॉग पार्ट हमने जस्ट स्टार्ट किया है। इट विल टेक टाइम बिकॉज नया टॉपिक भी है, थोड़ा लेंथी भी है। सो लॉग का जितना पार्ट हम लोगों ने आज देखा, यू कैन प्रैक्टिस दिस पार्ट एंड दैट्स इट फॉर टुडे ओनली। ओके, थैंक यू।